Good morning, students. Am I audible to all? Yes, madam. Yes. Yes, madam. Yes, madam. Okay. In last lecture, we have seen the syllabus, whatever the objective outcomes of the subject, that is the basics of civil engineering. But maybe there are the new members are added into this division. So that will cover this once again this whole syllabus we have discussed in the last lecture. जो भी हमने लास्ट लेक्चर को जो डिस्कस किया है वो वंस अगेन हम डिस्कस करेंगे इधर, और उसके बाद हम रेगुलरली हमारा यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे. ओके, so first I will introduce myself. I am Sonali Pandurang Patil, Professor S.P. Patil. I am working in the civil engineering department, and I have taught more than 10 subjects. I have completed my BE Civil from PVPIT Budgaon. After that, I have completed my MTech from the same institute, that is the Sweris College of Engineering, Pandharpur. And after that, I have passed the PET examination, that is the PhD entrance test. And after that, I have taken admission into the Veer Mata Jijabai Technological Institute, Matunga, Mumbai. And now I am pursuing my PhD in structural engineering. Okay, that is my introduction. And now I am dealing with the basics of civil engineering in this division. कुठला सब्जेक्ट मी डील करते तुमच्यासोबत आता, तर बेसिक्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग. ओके, basics of civil engineering and mechanical engineering. Into this syllabus, whole name implies as a basics of civil and the mechanical engineering. From that, section number 1 is introduces the basics of civil, and section number 2 which introduces the basics of mechanical engineering. ठीक है, इसमें से ये सब्जेक्ट का जो नाम दिया है ये है बेसिक्स ऑफ सिविल एंड द मैकेनिकल इंजीनियरिंग. इसमें से दो पार्ट है, सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2. फ्रॉम दैट पार्ट नंबर 1 व्हिच इज रिलेटेड टू द बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, एंड जो सेक्शन सेकंड है वो किससे रिलेटेड है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है. सो दैट दिस सब्जेक्ट इज इम्प्लाइज एज द बेसिक्स ऑफ सिविल एंड द मैकेनिकल इंजीनियरिंग. जो हाफ सिलेबस है वो सिविल इंजीनियरिंग का है, हाफ जो सिलेबस है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, एंड टोटल एडिशन सो दैट इट विल बी नोन एज द बेसिक्स ऑफ सिविल एंड द मैकेनिकल इंजीनियरिंग. एंड ये जो सिलेबस है ये सभी ऑल द फॉर ऑल ब्रांचेस ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग द सेम सिलेबस, सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट को ये सिलेबस है तो ये सेम है. नाउ वी विल सी हियर दिस टीचिंग स्कीम एंड द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर दिस सब्जेक्ट. You can read here that theory that 4 hours per week, there are the 4 hours per week, and the ISC that laboratory experiment means experimental, for the experiment there will be a 2 hours per week. बघा आपल्याला जे त्या ठिकाणी थेअरीसाठी 4 लेक्चर असणार आहेत वीकली, आणखी लॅबोरेटरी म्हणजे काय एक्सपेरिमेंट जे असतील ते वीकली किती आहेत तर 2 तासाचे आहेत. इफ वी कम टुवर्ड्स दिस एक्झामिनेशन स्कीम, तर एक्झामिनेशन स्कीम या ठिकाणी काय असणार आहे, देर विल बी ISC फॉर 30 मार्क्स, दॅट इज द इंटरनल सेमिस्टर एक्झामिनेशन. इंटरनल सेमिस्टर एक्झामिनेशनचे किती मार्क्स असतील, देर विल बी 30 मार्क्स, बट दॅट विल बी average of ISC 1, ISC 2 and ISC 3. त्या ठिकाणी तुमच्या 3 टेस्ट होतील, ISC 1, ISC 2 and ISC 3, and based on these 3 ISCs average will be given to you, and that is the ISC mark. त्या ठिकाणी तिन्ही ISC चे average घेतल्यानंतर जे काही मार्क होतील ते तुमचे ISC चे मार्क असतील, that will be as a 30 marks. and second thing is that end semester examination. तर end semester examination मध्ये आपले किती मार्क आहेत बघा, 70 मार्क. त्यामध्ये जे काही तुमचे बेसिक्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग साठी हाफ मार्क असतील, that is the 35 marks, and remaining 35 marks for the mechanical engineering. In this way our teaching scheme and examination scheme for this basics of civil and the mechanical engineering is here. All of you understand this? Yes, Yes, madam. madam. Yes, Yes, madam. Madam. Okay. Yes, madam. Okay.
नाव विल मूव टुवर्ड्स द कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह. बघा आपल्या सब्जेक्टचे जे काही कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह आहेत विल डील विथ दिस कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह. व्हॉट इज मीन बाय दिस कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह? पहिल्यांदा आपल्याला बघायचं आहे की वी शुड नो व्हाट इज द कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह. कोर्स ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है? तो कोर्स ऑब्जेक्टिव मतलब जो भी हम काम करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, कोई तो एक ऑब्जेक्टिव रखते हैं माइंड में, वो ऑब्जेक्टिव हमें कंप्लीट होना चाहिए. वैसा ही है इधर, हम जो ये सब्जेक्ट है बेसिक्स ऑफ सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ये सीखने से पहले हम ये ऑब्जेक्टिव हमारे माइंड में रखते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव मुझे इस सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद मुझे मिलने चाहिए. सेम ही है, दॅट इज द कोर्स C113.01. आता या ठिकाणी बघा C113.01, C113.01. What is the C? C is nothing but a course. What is mean by the 113? 1 is nothing but a first year engineering subject. Second one is deals with the first semester, and third is deals with the third subject from your semester 1. So that it is nothing but a course C11. That is the name as a course number किती दिलेला आहे बघा, course number is C113 and 01 is a course number 1. बघा we are dealing with this subject basics of civil and the mechanical engineering. From that only section 1 related objective we'll see here. That are the 3 objective. What are these 3 objective? To describe the relevance of civil engineering for various applications in different branches of engineering and technology. Means we from this objective will get an idea. आपल्याला काय माहिती होणार आहे या ऑब्जेक्टिव्हचा जर स्टडी करायचा झाला, आपला जो काही 4 युनिट आहे तर 4 युनिट मधला जो काही पहिला ऑब्जेक्टिव्ह शिकायचा आहे तो म्हणजे कुठला आहे आपल्याला, की तुम्ही स्वतः त्या ठिकाणी काय करायचं आहे, तुम्हाला स्वतःला शिकायचं आहे की व्हॉट इज द मीन बाय द बेसिक्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग, व्हॉट आर द इम्पॉर्टन्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग. त्या ठिकाणी तुम्हाला शिकायचं आहे की व्हॉट आर द ॲप्लिकेशन्स ऑफ द सिव्हिल इंजिनिअरिंग. दॅट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह, दॅट इज द ऑब्जेक्टिव्ह नंबर 1. ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड दिस? तर काय बघायचं आहे, व्हॉट वी लर्न इन टू दिस CO नंबर 1. What we will learn Course. in this unit objective number 1? Course. Civil engineering. Basic of civil and mechanical engineering. What we will learn? Importance of civil engineering. Basics of civil engineering. What are the applications of civil engineering and whatever the branches of civil engineering. त्याचा स्टडी आपल्याला काय करायचा आहे या ठिकाणी करायचा आहे in the CO number 1. All of you understand? समजलं का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. CO नंबर जो 1 आहे त्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, त्या ठिकाणी रिलेव्हन्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग, सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा इम्पॉर्टन्स, व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग, व्हॉट आर द ॲप्लिकेशन्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग अँड व्हॉट आर द डिफरंट डोमेन्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग ब्रांच. दॅट स्टडी वी आर डीलिंग विथ दिस CO नंबर 1. हे आपल्याला या ठिकाणी CO नंबर 1 मध्ये शिकायचे. CO नंबर 2 आहे काय आहे बघा, तो to enable the students to carry out the simple surveys using traditional and modern surveying instrument and introducing them to remote sensing, GIS and GPS technology. तर बघा ऑलरेडी वी हॅव सीन द व्हॉट इज द सर्वे. तर बघा सर्वे आपण जे सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये काय असतो, इम्पॉर्टंट पार्ट इज रिलेटेड टू द सर्वे. सर्वे म्हणजे काय करतात ऍक्च्युअली, सर्वे इज नथिंग बट रोड सर्वे करतात. तुम्ही बघितलं असेल रोडवरती जे काही इन्स्ट्रुमेंट असतात सेटअप करून त्या ठिकाणी काय केलेलं असतं, सर्वेइंग करत असतात पीपल्स. जे सुपरवायझर आहेत ते काय करतात त्या ठिकाणी सुपरविजन जे करत असतात ते काय करतात, रोड सर्वेचं कन्स्ट्रक्शन करत असताना पहिल्यांदा त्या ठिकाणी सर्वे केला जातो. सर्वे करतात म्हणजे काय करतात, त्या ठिकाणी जे काही इक्विपमेंट आहे तर त्या इक्विपमेंटचा उपयोग करून ते काय करतात, 2 पॉईंट मधलं डिस्टन्स मेजर करतात, काही वेळेला अँगल मेजर करतात, रिड्यूस लेवल मेजर करतात. हे जे पूर्ण कंपोनंट आहेत रिलेटेड टू द अँगल मेजरमेंट, डिस्टन्स मेजरमेंट असेल किंवा त्या ठिकाणी इलेव्हेशन मेजरमेंट असेल, दॅट ऑल आर डील्स विथ द सर्वेइंग. ओके. तर हे सर्वेइंग करत असताना त्या ठिकाणी काही ट्रॅडिशनल मेथड्स आहेत, काही मॉडर्न सर्वेइंग मेथड्स आहेत. तर याचा उपयोग या ठिकाणी आपण करतो फॉर फाइंडिंग आउट द डिस्टन्स बिटवीन द 2 पॉईंट किंवा इलेव्हेशन किंवा त्या ठिकाणी अँगल मेजरमेंट करण्यासाठी काय करतो आपण, या सर्वेइंगचा उपयोग करतो. तर सर्वेइंग करत असताना त्या ठिकाणी ह्या ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये आपल्याला शिकायचं आहे की व्हॉट इज मीन बाय द सर्वेइंग, व्हॉट टाइप ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट्स आर यूज्ड टू कॅल्क्युलेट द टू कॅरी आउट द सिम्पल सर्वेज
अगेन देर आर दी इन्स्ट्रुमेंट्स. व्हॉट आर द इन्स्ट्रुमेंट, त्यामध्ये ट्रॅडिशनल कुठले आहेत किंवा त्या ठिकाणी मॉडर्न सर्विंग इक्विपमेंट कुठले आहेत हे आपल्याला काय करायचं या ठिकाणी वी हॅव टू स्टडी. नेक्स्ट पॉईंट काय बघा त्या ठिकाणचं, इंट्रोड्युसिंग देम विच आर दिस रिमोट सेन्सिंग GIS अँड GPS. म्हणजे इंट्रोड्युसिंग अबाउट द रिमोट सेन्सिंग GIS अँड द GPS. तर रिमोट सेन्सिंग म्हणजे काय असतं, ऑन द ऍक्च्युअल साईट ज्या ठिकाणचं आपल्याला काय करायचं सर्वे करायचं आहे, ऑन दॅट ऍक्च्युअल साईट काय न जाता आपल्याला काय करायचं आहे, वी हॅव टू टेक अ एरियल फोटोग्राफ्स अँड थ्रू दॅट एरियल फोटोग्राफ्स वी कॅन मेक अ सर्वे. दॅट इज नथिंग बट अ रिमोट सेन्सिंग. ही तुमचे शॉर्ट डेफिनेशन मी या ठिकाणी सांगितलेले, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन व्हॉट वी हॅव टू लर्न इन टू द CO नंबर 2. इन डिटेलमध्ये आपल्या सिलेबसमध्ये आपल्याला या ठिकाणी शिकायला मिळेल. त्याच्यानंतरचा जो पॉईंट आहे, व्हॉट इज द GIS, व्हॉट इज द GPS म्हणजे काय, जिओलॉजिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम म्हणजे काय असतं, ते कुठं वापरतात, त्याचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत, डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत. अगेन GPS, व्हॉट इज मीन बाय द ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम, ते कुठं वापरतात, त्याची टेक्नॉलॉजी काय आहे, कशासाठी वापरली जाते. दिस ऑल द पॅरामीटर्स हे आपल्याला काय करायचं, वी हॅव टू बी लर्न इन टू द CO नंबर 2. आणि हे आपल्या सिलेबसमध्ये ह्याचे पूर्ण इन डिटेलमध्ये स्टडी दिलेला आहे. And the third objective, that third Hello, ma'am. objective is Hello. हाँ. Hello, ma'am. Ma'am, I am Shakib, ma'am. I am not getting Marathi, ma'am, properly. Not properly, totally. So Okay, no problem. I will discuss in English or Hindi. Okay, ma'am. Maybe you can use, but mention also in Hindi. Okay, no problem. Okay, thanks. Now I will discuss once again that objective number 1. Objective number 1 is the to describe the relevance of civil engineering for various applications in different branches of engineering and technology. इसमें से हम क्या सीखेंगे, जो रिलीवेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग क्या है और इसके डिफरेंट ब्रांचेस क्या क्या है और उसका स्टडी जो है वो हम इस CO नंबर 1 में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. सेकंड जो ऑब्जेक्टिव हो, ये क्या बोल रहा है सेकंड ऑब्जेक्टिव, टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू कैरी आउट द सिंपल सर्वे यूजिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट and introducing them to remote sensing, GIS and the GPS technology. Okay, from this second objective हम इसमें क्या सीखने वाले हैं, फर्स्ट हाउ टू कैरी आउट द सर्वे. तो सर्वे रोड सर्वे है तो रोड पर सर्वे कैसा कैरी आउट करते हैं, उसके लिए कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं उधर, जो थियोरोलाइट है, डंपी लेवल है, चेन है, टेप है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट का उधर कैसे यूज करते हैं और ये यूज करके कैसे हम सर्वे करेंगे, ये भी हम प्रैक्टिकल में सीखने वाले हैं. उसके बाद इधर दिया है कि ट्रेडिशनल इक्विपमेंट कौन से है, मॉडर्न इक्विपमेंट कौन से है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन कैसा होगा, ये सब हम इधर क्या करेंगे एक्चुअल में एज पर द लेक्चर में हम उसका इक्विपमेंट का हम पिक्चर दिखाएंगे और एट द टाइम ऑफ द प्रैक्टिकल हम क्या करेंगे, टोटल डेमोन्स्ट्रेशन जो है इक्विपमेंटचा वो हम आपको दिखाएंगे. उसके बाद ये रिमोट सेंसिंग मतलब क्या है, रिमोट सेंसिंग इज नथिंग बट ऑन द एक्चुअल साइट. हम वहाँ नहीं जाएंगे, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एरियल फोटोग्राफ्स निकालेंगे एंड थ्रू दिस एरियल फोटोग्राफ्स विल गेट एन आइडिया अबाउट दैट साइट. Okay, that is the remote sensing. After that there is a GIS and global positioning system. जो GIS है वो ग्लोबल जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है एंड GPS है वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है. उसका मीनिंग क्या है, वो कहाँ यूज करते हैं, वो सब जो इन डिटेल स्टडी है ये हम इसी सिलेबस में पढ़ेंगे. ओके, उसके बाद जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स टू द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम एनवायरमेंट एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, बिल्डिंग एलिमेंट एंड द ग्रीन बिल्डिंग. ओके, तो ये जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है इसमें से हम क्या अचीव करने वाले हैं, तो इसमें से हमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. व्हाट इज द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, ये डोमेन्स है सिविल इंजीनियरिंग के. ये इन डिटेल सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, लास्ट ईयर में ये इन डिटेल उसका सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसा स्टडी इन डिटेल है. बट उसमें से एक छोटा कंसेप्ट जो है इसमें ऐड किया है, दैट इज व्हाट इज यू हैव टू बी अंडरस्टैंड. ऑल ब्रांचेस के स्टूडेंट हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग क्या है, उसमें से वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या होता है, बिल्डिंग के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. इसलिए ये थर्ड ऑब्जेक्टिव है. व्हाट इज दिस, टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स
important concept from environment and water resource engineering, transportation engineering, building element and the green building. So that from this objective number 3rd, we'll get an idea or we'll understand the concepts of environmental and water resource engineering, transportation engineering, building element and the green building. Is it okay to all? All of you understand this? Yes, ma'am. Yes, madam. Yes, ma'am. Okay. Now we'll move towards the next slide. These are the objectives from our syllabus, that is the basics of civil only. Coming towards the outcomes, there are the, in last slide there are the objective, but here are mentioned as the objectives. So what is the difference between this objective and the outcome? ये मैं आपको बताती हूँ. ऑब्जेक्टिव इज मतलब ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है, जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द सिलेबस ये हमने माइंड में रखा है कि ये मुझे सीखना है ये सब्जेक्ट में. एग्जाम्पल लेती हूँ, ये कि आपको सर्वे कैसा करते हैं ये आपको सीखना है. तो ये आपका था ऑब्जेक्टिव कि सर्वेइंग, हाउ टू carry out the surveying on the road. That is our objective. But after the completion of this subject, you should know how to carry out the survey. That is the difference between the objective and the outcome. At the time of the objective क्या है, स्टार्टिंग जो हमने की है इधर, तो हमने क्या माइंड में रखा कि मुझे इसमें से सर्वेइंग कैसा करते हैं और सर्वेइंग कैसा कैरी आउट करते हैं ऑन द रोड, ये मुझे पता करना है इस सब्जेक्ट से. एंड आफ्टर द कंप्लीशन, हम जब ये सिलेबस कंप्लीट करते हैं, प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद आपको किसी ने पूछा कि ये सर्वे कैसा कैरी आउट करते हैं, इसके लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए. दैट इज नथिंग बट आउटकम. और वो आपको पता है, दैट इज नथिंग बट अ कोर्स आउटकम फ्रॉम दिस बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes. So now I read here that all the outcomes that are same as to objective, only there is a difference that are the objective at the starting of the subject and at the end of the subject, that all objectives in your hand. Okay. First one is the describe the role of civil engineer in the development and the relevance of civil engineering knowledge with the other branches of engineering and technology. Means बघा, at the starting of this chapter we have learned about this objective, but after the completion of this syllabus you should know what is the role of civil engineer in the development, and what is the relevance of civil engineering, what is the importance of civil engineering, and what are the basics of branches of the civil engineering. That all the study already you have did into the basics of civil engineering, and so that you should know the all the parameters related to the role of civil engineer, again relevance of civil engineering, and whatever the branches of the civil engineering and the technology. Okay. सेकेंड ऑब्जेक्टिव, सेकेंड आउटकम इधर क्या होता है देखो, कैरी आउट द सिंपल सर्वे लाइक मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, इलेवेशंस एंड एंगल्स यूजिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट, as well as they will be conversant with the remote sensing, GIS and the GPS technology. Okay, after the completion of syllabus you should know how to carry out the survey. Okay, how to carry out the survey, and how to calculate the distance between the 2 points, how to calculate the angles, how to calculate the elevation. Means that all the whatever the basics about the civil engineering and whatever the instrument related information you should know. त्या ठिकाणी ऑलरेडी you should know. त्या ठिकाणी तुम्हाला काय असणार आहे, माहिती असणार आहे की बाबा what is this simple survey, how to calculate this simple survey, and which instrument is used to calculate the simple survey. That all are deals with your CO number, that is the objective number second, and with respect to the outcome. And in that again remaining part you should know what at this instant you should know, you don't know what is that remote sensing, you don't know what is that GIS, you don't know what is that GPS technology, but after this completion of this syllabus you should know that all the information regarding the remote sensing, GIS and the GPS technologies. Okay. Okay, ma'am. Coming towards coming towards our objective, coming towards our outcome number 3rd.
ऑब्जेक्टिव में हम क्या देखा था कि ऑब्जेक्टिव में हमने देखा था कि वट एवर द branches of civil engineering related to the environmental, related to the water resource and related to the transportation engineering, different building element, उसके बारे में हम सीखने वाले थे। कहाँ? ऑब्जेक्टिव में। और सिलेबस में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस आप सीखे भी और उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में है और आप वो बोलेंगे कि वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग मतलब क्या, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मतलब क्या, व्हाट आर द डिफरेंट बिल्डिंग एलिमेंट, बिल्डिंग के एलिमेंट कौन कौन से है और उसका फंक्शन क्या है, और व्हाट इज द ग्रीन बिल्डिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन बिल्डिंग एंड द रेनफोर्स्ड बिल्डिंग, दैट ऑल know after the completion of the syllabus, and that is nothing but your course outcomes for the basics of civil engineering. Is it okay to all? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Okay, coming towards the next slide now, I will discuss here the syllabus of the civil engineering, basics of civil engineering. Section number 1. First we will read the syllabus and after that I will discuss the unit number 1 in short. Okay. Introduction to the civil engineering. Introduction to the civil engineering, that is our unit number 1. Read the syllabus first. Definition and various subdomains of civil engineering. Relevance of the civil engineering branch with the other branches of engineering and technology. Role of civil engineer in various construction activities and development. General principles of surveying. Classification of surveying. Measurement of horizontal distances. Leveling using dumpy level and the atto level. Okay, you can see here the syllabus. Baga, what the syllabus is mentioned here, the definition and various subdomains of civil engineering. In this unit will deal with these subdomains of civil engineering. First, definition of civil engineering. What are the domains of the civil engineering? What is the importance of the civil engineering? What are the different branches of civil engineering? And what is the role of civil engineer in various construction activities and the development? General principles of surveying. Classification of surveying for the measurement of horizontal distances, leveling and using the dumpy level and the atto level. ओके तो बघा इन दिस ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग क्या है, इसके सब डोमेन्स कौन से हैं, वो कौन से ब्रांच में सिविल इंजीनियरिंग डिवाइड किया है, अगेन सिविल इंजीनियर है तो उसका रोल क्या है, डिफरेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होते हैं तो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में सिविल इंजीनियर का रोल क्या है, अगेन देयर इज अ व्हाट इज द सर्वेइंग क्यों करते हैं, उसका क्या है, इन विच डिफरेंट वेज कौन से टाइप के सर्वेइंग किए जाते हैं, और सर्वेइंग यूज करके हमें क्या मिलने वाला है, क्या उधर हम सर्वेइंग करके क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं क्या, एंगल मेजर कर सकते हैं क्या, 2-3 पॉइंट है तो, और वो सर्वेइंग करने के लिए कौन से इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं, उधर डंपी लेवल है या ऑटो लेवल है, कौन से इक्विपमेंट है, तो वो सभी इक्विपमेंट के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। और जो सिलेबस है उसमें से सिविल इंजीनियरिंग क्या है, सिविल इंजीनियरिंग का मीनिंग क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, और एज अ रोल एज अ सिविल इंजीनियर उसका रोल क्या है कंस्ट्रक्शन साइट पर, अगेन सर्वेइंग के कौन से प्रिंसिपल्स है, उसके टाइप्स ऑफ सर्वेइंग कौन से है, और उसका सर्वेइंग का यूज हम ऑन साइट कैसा करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, अगेन उधर एंगल मेजर करना है, उधर लेवलिंग करना है तो कौन से इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, ये सब जो स्टडी है ये सब स्टडी हम यूनिट नंबर 1 में करने वाले हैं। इज इट ओके? समझ आया क्या? Yes, ma'am. Yes, 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 ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके, कमिंग टूवर्ड्स द यूनिट नंबर 2। अब हम देखेंगे सिलेबस यूनिट नंबर 2 में कौन सा सिलेबस है। तो देखिए इधर सिलेबस है, चैप्टर का नाम पहले हम रीड करेंगे, सर्वेइंग रिमोट सेंसिंग एंड द जीआईएस, सर्वेइंग रिमोट सेंसिंग एंड द जीआईएस। सो रीड करिए सिलेबस, एंगुलर मेजरमेंट्स यूजिंग compass and theodolite
compass and theodolite, comma, demonstration of total station, fundamentals of remote sensing and its application in various fields, geoinformatics, introduction to geographic information system, that is the GIS, fundamentals of global positioning system, that is the GPS, and the last point is the demonstration of GPS meter. Okay, this is the syllabus of unit number 2. इन दिस सिलेबस बघा हम क्या इधर लर्न करने वाले हैं इन दिस यूनिट नंबर 2, that is the related to the whatever the instrument that are the traditional instrument and the some of the instruments are a modern instrument. From that atto level and the dumpy level, that is the one of the traditional equipment, and after that there are some modern equipments are also come, and that is nothing but a compass, theodolite and the total station. Roll number 03, don't make scratches on the slide. E03. Okay, there is a unit number 2. Unit number 2 is the surveying, remote sensing and the GIS. So in this unit, what we will study, first one is the angular measurement using compass and the theodolite. तो हमें क्या दिखना है इधर, कंपास सर्वे क्या होता है, उसका यूज सर्वे करने के लिए कैसा होता है, थियोडोलाइट क्या है, ये थियोडोलाइट इक्विपमेंट में कौन से पार्ट है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन कैसा है, वो ऑन साइट कैसा यूज करते हैं, वो यूज करते हैं मतलब उसमें वो यूज करके कैसे एंगल मेजर करते हैं, डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, इलेवेशन कैसे मेजरमेंट करते हैं, दो वो जो स्टडी है वो सब स्टडी हम इधर प्रैक्टिकल एज वेल एज इन आवर लेक्चर सीरीज ऑल्सो विल स्टडी. सेकेंड पॉइंट क्या है, देखो इधर ये टोटल स्टेशन क्या है, टोटल स्टेशन मतलब ये इक्विपमेंट, ये डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टोटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है फ्रॉम आवर सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू. उसमें वो यूज करके हम क्या करने वाले हैं, ये जो स्मॉल इक्विपमेंट रहते हैं उसका सब स्टडी करके हम उधर एंगल मेजर करते हैं, कहीं तो इलेवेशन मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, बट जो ये मॉडर्न इक्विपमेंट है टोटल स्टेशन उसका यूज करके ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दैट इट इज कॉल्ड एज अ मॉडर्न इक्विपमेंट, दैट इज द टोटल स्टेशन. अगेन व्हाट आर नथिंग बट अ फंडामेंटल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, उसके फंडामेंटल क्या है, रिमोट सेंसिंग क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है इन फील्ड, हाउ टू यूज दिस रिमोट सेंसिंग फॉर द सर्वेइंग, that all the parts we will see in the unit number 2. After that geomatics, what is the geographical information system, GIS क्या है, GPS क्या है, information कैसे हम collect करेंगे through this GIS and the GPS, what are the advantages of this GIS and GPS meter क्या है, ये सभी का information, ये सभी का study हम unit number 2 में करेंगे. Is it okay to all? Okay, ma'am. Yes. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Now I will move towards the next slide. Okay, unit number 3, that is related to the building element, green building, modern building services. Okay, that is the unit number 3. Name of the chapter number 3 is that is the building element, green building, modern building services. We'll read first the syllabus. General idea about substructure, superstructure, comma, elements of building foundation, comma, column, comma, beam, plinth, lintel, chajaj, roof, parapet and spout, etc. And their functions. Superstructure, principles of load transfer, frame structure, load bearing wall structure, green building, its concept, principles of planning and constructions of green building, heating, ventilation and air conditioning, elevators, accelerators and ramps, as far as the civil engineering aspect only, and fire safety for the building. That is the syllabus included into the unit number 3.
ओके तो इधर देखिए इसमें से क्या है, एक बिल्डिंग एलिमेंट, बिल्डिंग का जो स्टडी है इसमें से इंक्लूड किया है विच आर द डिफरेंट बिल्डिंग सर्विसेज, बिल्डिंग में कौन कौन से सर्विसेज भी रहते हैं उसका भी इधर एडिशन किया है। बिल्डिंग के एलिमेंट मतलब बिल्डिंग का टोटल बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के कंपोनेंट कौन कौन से है, बीम है, कॉलम है, फुटिंग है, इसमें से वॉल है, पैरापेट वॉल है, रूफ है, तो ये सब जो रहते हैं बिल्डिंग के एलिमेंट तो उसका स्टडी हम इधर करेंगे और कौन सा एलिमेंट का कौन सा फंक्शन है ये भी हम क्या करेंगे इधर स्टडी करेंगे। उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर में कौन से कंपोनेंट आते हैं, सब स्ट्रक्चर में कौन से कंपोनेंट आते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब स्ट्रक्चर, उसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं वो सब हम इन डिटेल इधर पढ़ेंगे। उसके बाद वो जो बिल्डिंग का लोड है वो बिल्डिंग का लोड कैसा ट्रांसफर होता है, बिल्डिंग के कौन से टाइप रहते हैं, और बिल्डिंग को ही बिल्डिंग स्ट्रक्चर है उसके दो टाइप रहते हैं, फर्स्ट वन इज फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, वॉल बीयरिंग स्ट्रक्चर, तो उसमें से डिफरेंस क्या है ये सब जो स्टडी है वो सब स्टडी हम इस बिल्डिंग एलिमेंट दैट इज यूनिट नंबर 3 में सीखेंगे। उसके बाद इधर और भी दिया है कि ग्रीन बिल्डिंग मतलब क्या है, ग्रीन बिल्डिंग व्हाट इज द ग्रीन बिल्डिंग, why it is known as green building, that all the definitions and all the importance about this green building as well as how to go for the planning and construction of this green building, उसका वेंटिलेशन कैसा रहता है, हीटिंग कैसा रहता है, एयर कंडीशनिंग कैसा रहता है, हमारे यूजुअल जो बिल्डिंग है उसके हिसाब से हम उसका कंपैरिजन भी करेंगे। उसके बाद एलिवेटर्स, एक्सेलरेटर्स, रैम्प्स ये प्रोवाइड करते हैं किधर, घर अभी हमारा घर है तो उसमें ये प्रोवाइड करते हैं क्या, तो इसका फंक्शन क्या है, क्यों ये प्रोवाइड करना चाहिए एज पर एज द सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट, ये सब हम स्टडी इधर बिल्डिंग एलिमेंट यूनिट नंबर 3 में करेंगे। और उसके बाद फायर सेफ्टी की जरूरत है कि नहीं, वो बिल्डिंग में चाहिए या नहीं चाहिए, उसका भी स्टडी, वो क्या है फायर सेफ्टी मतलब क्या है, वो हम बिल्डिंग में करते हैं तो हमें वो जो डिजास्टर होने वाला है कुछ होने वो फायर सेफ्टी है तो उसका मीनिंग क्या है, वो प्रोवाइड करने से हमें क्या वो प्रोवाइड करना मतलब ये इम्पोर्टेंस है या नहीं है, कौन से टाइप की बिल्डिंग में ये फायर सेफ्टी यूज करना चाहिए, वो जो स्टडी है वो सब स्टडी हम क्या करेंगे इस यूनिट नंबर 3 में करेंगे। ओके ऑल ऑफ यू Okay, ma'am. अंडरस्टैंड दिस? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. लास्ट चैप्टर जो बचा है उसका हम ये इधर हम क्या करेंगे, उसका क्या उसमें कैसे क्या क्या है वो देखेंगे, उसके बाद हमारी मीटिंग क्या होती है खत्म होती है। ओके सो फर्स्ट रीड द सिलेबस ऑफ यूनिट नंबर 4 एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। सो देखिए इधर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आर द ब्रांचेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सो इसमें से कुछ पार्ट है इधर जो आपको स्टडी करना है वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो क्या लिखा है देखो इधर, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैलकुलेशन ऑफ कार्बन इमिशन, सोर्सेस ऑफ वाटर, हाइड्रोलॉजी, डैम्स एंड storage reservoirs, various modes of transportation, roads, railway bridges, tunnels, docks and harbors, introduction to roads, IRC classification, typical cross sectionals of roads, intelligent transportation system, and last point is the interdisciplinary application. In this unit number 4, we'll study about the whatever the basics branches of the civil engineering related to the transportation engineering, water resource engineering, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, उसमें से ही हम सीखेंगे डैम साइड क्या होता है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, इफ रोड है तो रोड का कंपोनेंट कौन कौन से है, वो कौन सा वो रोड कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, अभी डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उधर एयर ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन है और रोड ट्रांसपोर्टेशन है, तो इसमें से हम स्मॉल स्मॉल पार्ट जो कंसेप्ट रिलेटेड है वो हम इधर सीखेंगे इन द यूनिट नंबर 4। आफ्टर दैट what is that IRC, what is the intelligent transportation system and why the importance of this intelligent transportation system is here, that all related to the short concept related to this point we'll see in this unit number 4 in which is included into the syllabus, that is the basics of civil engineering. त्या ठिकाणी बघा हायड्रोलॉजी, व्हॉट इज द हायड्रोलॉजी, सोर्सेस ऑफ वाटर कौन से होते हैं, हाइड्रोलॉजी मतलब क्या है, डैम साइट मतलब क्या है, रिजर्वायर क्या होता है, ये जो पैरामीटर्स है ये अगेन वाटर ट्रीटमेंट, जो वाटर है वाटर जो
जो वेस्ट वाटर होता है तो वेस्ट वाटर का वो क्लीनिंग कैसे करते हैं, उसको प्योर कैसे करते हैं, उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट करते हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है तो उसका डिपोजिशन कैसा करेंगे वेस्ट है तो वो जो वो जो कंसेप्चुअल स्टडी है वो कंसेप्चुअल स्टडी हम इधर यूनिट नंबर 4 में करेंगे। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस सिलेबस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Within 2 minutes our meeting will be over. Before that, I will take the attendance. Ma'am, notebook Next lecture सांगा ना. start our unit number 1. मॅम तुमचा नंबर भेटेल का? हाँ, okay, no problem. I will share with you.